Hello everyone, welcome you all in class 11 geography. We are discussing chapter 6 soils. In this module 5, we will discuss about two soil, arid soil and forest soil. So let's start the topic. As you can see the arid soil picture, the soil is usually unavailable for the any kind of cultivation or any kind of forestation. So let's see the arid soil and its characteristic. Arid soil. First, the location. If we see the location of arid soil, so arid soil are characteristically developed in western Rajasthan. So the main important area or the location of the arid soil, that is the Rajasthan. As you know, Rajasthan is a desertic region which exhibit the arid topography, जहाँ पूरे ही arid topography है. The main characteristic of the arid soil. First, arid soil range from red to brown in color. So if we talk about the color, so the arid soil color from red to brown. Then generally they are in sandy, means if we talk about the grain size, so the granule size or the grain size of arid soil is sandy, means we can say the comparatively large molecules contain arid soil. Saline in nature, there is a more content of the salt, so that's why saline in nature. In some area the salt content is so high that common salt is obtained by evaporation, the saline water. कहीं कहीं एरिड एरिया में क्योंकि evaporation ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से salinity इंक्रीज़ हो जाती है. सो saline soil इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ से हम common salt भी NaCl है उसको भी हम अकर कर लेते हैं. Due to the dry climate, the high temperature and accelerated evaporation, they lack moisture and humus. So the main problem is that the dry climate, as you know, the western area or the desertic region having the dry climate, so maximum water evaporate हो जाता है. High temperature होगा, रेनफॉल बहुत कम होगा, टेम्परेचर बहुत हाई होगा. देन एक्सक्लेरेटेड एवेपोरेशन. और ड्राई क्लाइमेट यानी वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, टेम्परेचर बहुत हाई है, इसकी वजह से इवेपोरेशन की जो रेट है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सक्लेरेटेड होती है. और इन्हीं सब कॉजेज़ की वजह से यहाँ पर ना तो मॉइस्चर कंटेन होता है और ना ही ह्यूमस जनरेट हो पाती है. नाइट्रोजन इज़ इनसफिशिएंट एंड द फॉस्फेट कंटेंट इज़ नॉर्मल. इफ़ यू टॉक अबाउट द मिनरल्स की मिनरल्स अवेलेबिलिटी क्या है, सो नाइट्रोजन बहुत इनसफिशिएंट है. नाइट्रोजन इज़ रिक्वायर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड है. लेकिन जब राइजोबियम ही नहीं होगा तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रेट में नहीं कन्वर्ट हो पाएगी और प्लांट्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्लांट की ग्रोथ भी कम होती है, क्योंकि फॉस्फेट कंटेंट नॉर्मल क्वांटिटी में अवेलेबल हो जाता है. लोअर हॉरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर्ड लेयर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड. लोअर हॉरिजन, सॉइल हॉरिजन में जो लोअर एरियाज़ हैं वहाँ कंकर्ड कंटेंट ज़्यादा है, जिससे कैल्शियम इंक्रीज़ हो जाता है डाउन पार्ट में और ये वाटर को प्योरीफाई वाटर को ऊपर आने से रोकता है. कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर. एज एक्सप्लेन यू, ये जो कंकर की पूरी इस तरीके से एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, तो ये वाटर की इनफिल्ट्रेशन के लिए ना तो रेन वाटर को नीचे जाने से परकुलेट हो जाती है और ना ही ग्राउंड वाटर को ऊपर की साइड आने देती है. सो ड्यू टू दिस प्रॉब्लम and such when irrigation is made available, the soil moisture is readily available for a sustainable plant growth. These soil are poor and contain little humus and organic matter, so that's why they are unfit for wide range of cultivation. But in Rajasthan region, due to the IGNP Indira Gandhi Canal project, हम वाटर को ले आए हैं रिवर्स सतलुज डैम से, हम इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट के थ्रू वाटर को इन एरियाज़ में ले आए, जिससे इन सॉइल में यानी कि सैंडी सॉइल या सलाइन सॉइल में भी हमने प्रोडक्शन कर लिया है. नेक्स्ट, सलाइन सॉइल. If we see the location of the saline soil, the wide spread in Gujarat, delta of eastern coast and the Sundarban area.
बेसिकली सलाइन सॉइल अवेलेबल इन दोज एरिया वेयर देयर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ ज़्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी होगी उन एरियाज़ में सलाइन सॉइल की अवेलेबिलिटी होगी। तो गुजरात, वेस्टर्न गुजरात, एज यू नो दिस इज़ अ कोस्टल एरिया, डेल्टा ऑफ ईस्टर्न कोस्ट एंड सुंदरबन द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा of West Bengal. So all it can also be seen in the area of Punjab and Haryana for excessive groundwater irrigation. इन 3 एरियाज़ में मीन्स गुजरात, सुंदरबन डेल्टा, इन एरियाज़ में तो कोस्टल एरिया है, बट पंजाब और हरियाणा में जो एक्सेसिव इरिगेशन किया गया है उसकी वजह से भी वहाँ की जो सॉइल है वो सलाइन बन गई है। सलाइन बेसिकली मीन्स देयर इज़ अ फिल्म और लेयर ऑफ सॉल्ट ऑन द surface of soil, and this restrict the development or growth of different kind of bacteria which causes for the little quantity of the humus. Characteristics, they are also known as ooser soil. So when we do the classification of this soil, we discuss ooser means unfertile and urvar means fertile. So that's why they called as ooser means unfertile soil. Saline soil contain a larger portion of sodium, potassium, magnesium, all these are common salt content and thus they are infertile, यानी salt content होगा इसलिए ये fertile भी नहीं होंगी, and do not support any vegetation growth, किसी भी vegetation growth को support नहीं करते हैं। They have more salt, यहाँ salt की quantity बहुत ज़्यादा होगी, so largely because of dry climate। इतना ज़्यादा सॉल्ट क्वांटिटी क्यों होती है? एक तो ड्राई क्लाइमेट यानी वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, कम है वाटर अवेलेबिलिटी, देन पुअर ड्रेनेज, रिवर फैसिलिटीज़ भी नहीं है। दे अकर इन एरिड और सेमी एरिड रीजन एंड इन वाटर लॉग्ड एंड स्वाम्पी एरिया। यानी जनरली जो सलाइन सॉइल होगी कहाँ डेवलप होगी? एरिड और सेमी एरिड रीजन में, या सेकंड जहाँ वाटर लॉग्ड एरिया, जहाँ पानी भरा हुआ होगा, स्वाम्प यानी दलदली जगह होंगी, उन एरियाज़ में भी सलाइन सॉइल डेवलप हो जाएगी। देयर स्ट्रक्चर रेंजेस फ्रॉम सैंडी टू लूमी। एरिड सॉइल हमने देखा उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? सैंडी यानी टेक्सचर सैंडी होता है, जबकि सलाइन सॉइल सैंडी से लोमी तक किसी भी टेक्सचर में मिल सकती है। दे लैक इन नाइट्रोजन एंड कैल्शियम। द रन ऑफ कच्छ, द सदर्न मानसून ब्रिंग्स सॉल्ट पार्टिकल एंड डिपोजिट देयर एज अ क्रस्ट। सी वाटर intrusion in the delta promote the occurrence of saline soil. In the area of intensive cultivation with excessive use of irrigation, especially in area of green revolution, the fertile alluvial soil are become saline। यानी उन एरियाज़ में जहाँ ऑलरेडी एलुवियल सॉइल है लेकिन कॉन्टिन्यू इरिगेशन की वजह से वो एलुवियल सॉइल भी सलाइन सॉइल में कन्वर्ट होती जा रही है। इसके बहुत करंट एग्जांपल है पंजाब एंड हरियाणा, बिकॉज एज यू नो पंजाब एंड हरियाणा रिवर एरिया के एरिया में आते हैं, सो वहाँ पर एलुवियल सॉइल है, लेकिन फॉर गेटिंग द मोर प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए वहाँ पर एक्सेसिव इरिगेशन किया गया है और उसकी वजह से वो सॉइल धीरे धीरे सलाइन बन गई है, एंड सलाइन सॉइल इज़ नॉट फिट फॉर एनी काइंड ऑफ कल्टिवेशन। Excession irrigation with dry climate condition promote capillary action, which result in the deposit of salt on the top layer of the soil. So basically more irrigation कैसे saline soil को develop करता है? Excessive irrigation, suppose this is a land surface, so जब हम irrigation ज़्यादा करेंगे और dry climate condition होगी तो कैपिलरी सिस्टम डेवलप होगा, यानी वाटर धीरे धीरे नीचे के लेयर से ऊपर के लेयर्स में आना स्टार्ट हो जाएगा। वाटर ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट वाटर विल ड्राई अप, ड्राई क्लाइमेट की वजह से वाटर तो ड्राई हो जाएगा, लेकिन जो सॉल्ट कंटेंट है वो इस सरफेस डिपॉजिट हो जाएंगे एंड देयर इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ द सलाइन सॉइल। सो एक्सेसिव इरिगेशन विद ड्राई क्लाइमेट कंडीशन प्रमोट कैपिलरी एक्शन which result in the deposition of salt on the top layer of the soil, especially in the Punjab and Haryana. So these two important area develop of the saline soil where there is a existence of alluvial soil, but due to the high irrigation there is a development of the saline soil. Farmer are advised to add gypsum, important term. Farmer are advised to add gypsum to solve the problem of salinity.
if we solve the problem of salinity, so farmer need to put the gypsum to solve this problem. Thank you.